Hello, my dear friends. Today we will discuss a short story, The Fortune Teller, that is written by Karel Capek. He was a famous Jack novelist and playwright, and he was very famous storyteller. This is a story about a detective inspector. His name is Mr. McCleary. He's a fortune teller. His name is named Miss Mears. So this is a story that is plotted in London, that is city of England. Mr. McCleary is telling his wife, Mrs. McCleary, about Miss Mears, whom he came across other day. He expresses his surprise and doubts about Miss Mears. सो ये एक स्टोरी है एक जासूस के बारे में, एक डिटेक्टिव के बारे में, मिस्टर मैकलेरी जो एक फॉर्चून टेलर है, उसका नाम है मिस मीयर्स। तो इन दोनों के बारे में स्टोरी है। मिस्टर मैकलेयर्स ही टेल्स हिज वाइफ दैट ही कैन नॉट फॉरगेट द लेडी। लेडी का क्या नाम है? मिस मीयर्स। और ये जो लेडी है शी इज़ इंगेज्ड इन फॉर्चून टेलिंग, मतलब भविष्य बताने का ये काम करती है। सो मिस्टर मैकलेरी he says that he is surprised to see that in the month of February she is going to eat asparagus because asparagus are very costly in this month, and Mr. McCleary makes guess that she deals with at least 12 to 20 visitors a day whom she includes from charwoman to duchess। तो अब उसको सरप्राइज होता है कि फेब्रुवरी के मंथ में भी वो एस्पेरेगस खाती है। Though she is a fortune teller, but she is doubted to be engaged in some other nefarious activities like slave traffic and espionage। तो उसको लगता है कि उसको ये इनफैक्ट ये संदेह है कि वो इस फॉर्चून टेलिंग काम के अलावा, भविष्य बताने के अलावा कई और भी बुरे काम करती है, जैसे गुलामों का व्यापार या कोई जासूसी करना। तो अब मिस्टर मैकलियरी वो बिल्कुल निश्चय कर लेता है कि वह इस बात का पता लगा के रहेगा। तो इसमें जो ये स्टोरी है इसमें करेल कपेक है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट ए मीडियम क्लास सोसाइटी, ए मिडिल क्लास सोसाइटी, क्योंकि it was the time of this that England he displays that human beings became mischief and they were very frailty, so it influenced the writer। So by going through all these situations ये जो राइटर है करेल कैपेक, उन्होंने ये सब कुछ शायद उस टाइम के समाज में देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा, और इसी सब चीज़ों के बारे में वो है इस स्टोरी में लिखना चाहते हैं। सो इन दिस स्टोरी as we have discussed that the wife of Mr. McCleary goes to fortune teller Miss Mears। क्या नाम है उसका? Miss Mears। एंड मिस मीयर अंडर द गाइज ऑफ डिफरेंट नेम्स, उसने अलग अलग अपने नाम रख रखे हैं, जैसे मिस जॉन्स। शी पुट्स ऑफ हर वेडिंग रिंग एंड वियर्स ए गर्लिश फेस बिफोर गोइंग टू मिस मीयर्स। अब ये जो मिस्टर मैकलेरी की जो वाइफ है मिसेस मैकलेरी, वो वेश बदल कर मिस मीयर्स के पास जाती है। मिसेस मैकलेरी आस्क हर अबाउट हर फॉर्चून। Miss Mears, after dealing with the heaps of cards, tells the future of Mrs. McCleary in these next paragraphs. So let's see. Over the fifth heap of cards, Miss Mears declares that what she is going to tell is quite unmistakable.
She says that the lines of hands of Mrs. McCleary are very nice. मतलब वो उसका हाथ पढ़ने की कोशिश करती है. लाइंस यहाँ पे क्या है, जो उसके पाम में जो लाइंस बनी हुई है वो उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है. और यहाँ पर मिसिस मैक्लेरी एक डिस्गाइज फॉर्म में है और उसने एक गर्लिश लुक ले रखा है और अपना नाम उसने चेंज कर रखा है. उसने मिस जॉन्स बन के अपने आप को वहाँ पे उपस्थित किया. She is going to be married within a year with a high rich young man who may be a millionaire or a businessman. He may be a great deal traveler, but there will be certain obstacles to be overcome before their marriage takes place. These obstacles are likely to be created by an elderly man, but that should keep her patience. Miss Mears also declares for Mrs. McCleary that she will depart on a long journey, most probably across the ocean after her marriage. Miss Mears demands 1 guinea as her fee, which, as she says, will be utilized for the sake of poor Negroes. अब यहाँ पर क्या होता है, मिस जोन्स को, जो एक्चुअली है कौन, मिसिस मैक्लेरी, उसको मिस मेयर्स क्या बताती है कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली है एक मिलेनियर से और एक बिजनेसमैन से, और वो एक महान ट्रैवलर भी हो सकता है. लेकिन इस मैरिज में कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कुछ बाधाएं आएंगी. तो और ये बाधाएं, ये ऑब्स्टेकल्स कोई एक बड़ा बुजुर्ग आदमी उसके बीच में पैदा कर सकता है. तो वो कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, और इन सब के बदले, इस फॉर्चून टेलिंग के बदले वो उससे कुछ फ़ी लेती है. वो कुछ गिनीज डिमांड करती है, और वो कहती है कि ये सब कुछ वो किन के लिए यूज़ करेगी, पुअर निग्रोस. निग्रोस मीन्स यहाँ पे जो पुअर पीपल हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उनको देने में ये फ़ी वो यूज़ करेगी. सो लेकिन यहाँ पे आयरनी क्या है, आयरनी ये है कि मिसिस मैक्लेरी इज़ ऑलरेडी मैरिड and still Miss Mears says that she is going to be married with a millionaire businessman, and that is within a year, and she will be going on a long journey across the ocean. तो इस सेंटेंस में ये जो फॉर्चून टेलिंग जो मिस मियर कर रही है, इसमें एक आयरनी छुपी हुई है. क्या आयरनी है कि मिसिस मैक्लेरी तो ऑलरेडी मैरिड है, और मिसिस मियर्स कह रही है कि 1 साल के अंदर उसकी एक धनवान आदमी से उसकी शादी हो जाएगी, और वो कोई फॉरेन कंट्री में उसके साथ जाएगी. सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट दैट मिस मियर्स दैट शी कैन नॉट नो द प्रेजेंट रियलिटी. ये क्या शो करती है कि मिस मियर्स, शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंट रियलिटी अबाउट द मैरिटल स्टेटस ऑफ मिसिस मैक्लेरी, कि वो उसका जो ये फॉर्चून टेलिंग का बिजनेस है वो बिल्कुल फेक है. वो बिल्कुल लोगों को झूठ भविष्यवाणी करती है. तो आई थिंक यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा. उसके बाद में मिसिस मैक्लेरी गोज टू मिसिस मियर्स टू नो अबाउट हर फ्यूचर. यहाँ तक आपने समझ लिया है. अब जब मिस मियर ने रॉन्ग फॉर्चून टेलिंग की, गलत भविष्यवाणी की, तो मिस मियर्स डिक्लेयर्स फॉर हर दैट शी इज़ गोइंग टू बी मैरिड विद इन अ ईयर. तो इस बात पे, इस प्रोफेसी के कारण, ये जो मिसिस मैक्लेरी है, ये क्या करती है, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करने चली जाती है. मिस मियर्स एंड मैक्स हर अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट where she is charged of certain allegations. अब मिसिस मैक्लेरी वो बहुत से एलिगेशंस लगाती, किस पे, मिस मियर्स पे, कि उसने फॉल्स
फॉर्चून टेलिंग की है, उसने गलत भविष्य बताया, उसने जो प्रोफेसी की है, जो भविष्यवाणी की है, वो बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में द मजिस्ट्रेट मिस्टर केली, क्या नाम है उसका, मिस्टर केली, he tells Miss Mears that the charge against her is that she does not read the cards properly, कि तुम कार्ड्स को प्रॉपरली रीड नहीं करती हो, मतलब तुम सटीक भविष्यवाणी नहीं करती हो। He compares it to the adulteration. Magistrate, he says that it is as good as giving a slab of clay to one who demands a chocolate, कि ये इस तरह से है कि अगर कोई चॉकलेट डिमांड करता है तो हम उसको एक स्लैब दे देते हैं, आ, मिट्टी का कोई कण उसको दे दिया हो, जैसे मतलब उसको बहला दिया हो, एक तरह से उसको डिसीव किया है, उसको चीट किया है। सो द पीपल हु स्पेंड 1 guinea टू नो देयर फ्यूचर आर एंटाइटल्ड टू करेक्ट प्रोफेसी, कि इंग्लैंड में प्रोफेसी बताना गलत नहीं समझा जाता। तो अगर तुम किसी से इवन एक सिंगल गिनी, तो अगर तुम फॉर्चून टेलिंग के लिए ले रहे हो तो इट इज़ योर ड्यूटी टू टेल करेक्ट प्रोफेसी, तुम्हें लोगों को करेक्ट भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। ये सब कौन कहता है, मजिस्ट्रेट कहता है। किसको कहता है, मिस मियर्स को कहता है। तो इस तरह से मिस मियर्स पे कई तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, और ये एलिगेशंस क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि मिसिस मैक्लेरी इज़ ऑलरेडी मैरिड। सो यहाँ पे जो ऑथर है इस स्टोरी के द्वारा, ही वॉन्ट्स टू डेपिक्ट द मिडिल क्लास सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। ही पोर्ट्रेज द ह्यूमन वीकनेस। वीकनेस क्या है, कि हम सब कुछ जानते हुए भी हमें इंटरेस्ट रहता है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए। सो और क्या है इसमें, इस स्टोरी में क्या है कि ट्रायल एंड जजमेंट, कि किस तरह से ट्रायल एंड जजमेंट होता है किसमें, इंग्लिश कोर्ट्स में। सो द जजेस इन इंग्लैंड, और वी कैन कॉल इट लंदन, used to try the cases in accordance with the law as well as their shrewd common sense and dictate of conscience. So though the professing on the basis of card may not be dealt in detail in law books, but the judge charged the fortune teller, and he decided the case because he personally knew about the game of cards. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लंदन में उस टाइम जो कोर्ट्स थे, जो न्यायाधीश थे, वो कानून के अकॉर्डिंग ही अपनी जो न्याय करते थे, लेकिन कभी कभी वो अपनी जो सामान्य बुद्धि है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कॉमन सेंस है, और कभी कभी अपनी आत्मा की आवाज़, अपनी कॉन्शियंस को भी सुन लिया करते थे। तो और ये भी हो सकता है कि कार्ड्स के आधार पर भविष्य बताने पर कानूनों की किताबों में कोई ज़्यादा नहीं लिखा हुआ हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि उस टाइम ये सब कुछ इंग्लैंड में पॉपुलर हो, तो इस हिसाब से वहाँ के जो ज्यूरिस्ट हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो अपने निर्णय, अपने डिसीजंस लोगों को दिया करते थे। उसके बाद में मिस मैक्लेयर मिस्टर मैक्लेयर ट्राइज मिस मियर्स कैपेसिटी ऑफ प्रोफेसाइजिंग बाय सेंडिंग हिज वाइफ। यहाँ तक क्लियर है। मिस्टर मैक्लेरी says in growing voice that Mrs. McClare has fallen in love with a young businessman from Melbourne। और उसके बाद में क्या होता है कि सच में जो मिसेस मैक्लेरी है वो किसी के साथ में, किसी के लव में पड़ जाती है, और वो एक यंग बिजनेसमैन है, और वो कहाँ से है, मेलबोर्न से। वॉज ए वेरी रिच मैन, और वो सच में बहुत धनी आदमी है। तो जो पहले प्रोफेसी में कहा गया था वो चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी सच होने लगती हैं। ही ट्राई टू स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग विद हिम बट शी डिड नॉट कंसेंट टू हिज रिक्वेस्ट, एंड बोथ ऑफ देम सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया ओनली ए वीक अगो। तो क्या होता है कि कुछ थोड़े ही दिनों बाद में क्या होता है कि जो मिस्टर मैक्लेयर था,
उनकी जो मिसेस मैक्लेरी थी वो किसी बिजनेसमैन के प्यार में पड़ जाती है। वो ऑस्ट्रेलिया से है और थोड़े ही दिनों के बाद में वो दोनों ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। सो द ऑथर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी द फॉर्चून टेलर वो क्या बताता है, ह्यूमन फ्रेलिटी, ह्यूमन गिल्ट और उनकी जो कमजोरियां हैं वो बताता है। मिस मियर्स वॉज नॉट परफेक्ट एट प्रोफेसाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड्स and she could not understand that Mrs. McClary was already married. Yet she declares for her marriage. So this was all in her heart. But accidentally होता क्या है? Accidentally her prophecy comes true. उसकी जो उसने जो भविष्यवाणी की थी वो अचानक से सही हो जाती है। कैसे सही साबित हो जाती है कि मिसेस मैक्लेरी फॉल्स इन लव विथ सम यंग बिजनेसमैन एंड ही इज़ फ्रॉम मेलबॉर्न, और वो उसके साथ में कुछ ही दिनों बाद में, कुछ ही वीक्स के बाद में वो उसके साथ भाग जाती है। तो ये स्टोरी क्या शो करती है? दिस स्टोरी शोज द फ्रेलिटी ऑफ मिसेस मैक्लेरी इन रिगार्ड विथ मनी एंड न्यू हस्बैंड। तो मतलब उस टाइम की सोसाइटी में ये सब कुछ चीज़ें, मनी, रिलेशनशिप, लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ प्रोसीड कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों का चित्रण हम कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन इस शॉर्ट स्टोरी द फॉर्चून टेलर में कैरल कैपेक ने बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दिस explanation. Thank you.